Introduction. Look, Rahul, this robot is walking. Yes, this robot can do many other works. Rahul, do you know the difference between living and non-living things? Ruchika, I know only one difference, that living things move. But if it is true, then why this robot is not considered as living? Children, in this lesson, we will learn about characteristics of living things. Life. Life is unique, complex cellular organization of molecules, expressing it through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation, and reproduction. Characteristics of living things. Things which depict growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response are called living things. Plants and animals both are living. Therefore, biology deals with the study of both plants, botany, and animals, zoology. All living organisms share following basic characteristics: sense and respond to change, growth and development, give off waste, reproduce. Living things have cells. Each living being has a distinct individuality. It cannot be broken into two or more independent parts. The body of a living being is made of one or more cells. Cells are considered to be structural and functional unit of life. The cells are made of protoplasm or living matter. All the body functions and properties of life are due to protoplasm. Some living organisms like amoeba, paramecium are made up of one cell, only they are called unicellular. Organisms made up of many cells are called multicellular. Living things grow and develop. All organisms grow and develop. Growth results in an increase in size, weight, and synthesis of new protoplasm. In animals, growth is limited to a certain age, while plants grow all the life. The use of energy by living things. Living being constantly requires energy not only to perform various activities of the body, but also to overcome entropy, the degree of disorder in a system or tendency to randomness. The source of energy is food. It is required by every cell of the body. Food is prepared by plants by the process of photosynthesis. Plants require sunlight, carbon dioxide, water, and chlorophyll for the process of photosynthesis. The living things respire. Living things require oxygen to get energy from the food. They get required oxygen by the process of respiration. During respiration, oxygen is breathed in, and through the blood it reaches each and every cell of the body. Human beings have lungs for respiration. Fishes have gills, and cockroaches have spiracles. Living things sense and respond to change. Consciousness is awareness of the surroundings and responding to external stimuli. The ability of an organism or organ to respond to external stimuli is called sensitivity. Living things reproduce. Young ones grow and become mature. They develop the faculty to produce young ones of their own type. Life comes from pre-existing life. Summary. Let us summarize what we have learned. In the world, there are two types of structures, living and non-living. Living beings are complex entities. All living organisms share some basic characteristics: cellular structure, use energy, grow and develop, sense and respond to change, move, give off waste, and reproduce. The smallest unit of life is cell. Changes in structure and function of every living being with age are called development. A living organism can be unexceptionally differentiated from a non-living thing on the basis of its ability for reproduction. परिचय। देखो राहुल, ये रोबोट चल रहा है। हाँ रुचिका, ये रोबोट
और भी कई काम कर सकता है। राहुल, क्या तुम सजीव और निर्जीव वस्तुओं में फर्क समझते हो? रुचिका, मैं केवल एक अंतर समझता हूं कि सजीव वस्तुएं चलती हैं, लेकिन अगर ये सच है तो इस रोबोट को सजीव क्यों नहीं समझा जाता? बच्चों, इस पाठ में हम सजीव वस्तुओं की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। आओ सीखें। जीवन का वर्णन करना, सजीवों के लक्षणों की पहचान करना, ये समझना कि सजीव वस्तुओं में कोशिकाएं होती हैं, इसकी पहचान करना कि सजीव वस्तुएं जन्म लेती और विकसित होती हैं, सजीव वस्तुओं के द्वारा ऊर्जा के उपयोग की जानकारी प्राप्त करना, ये समझना कि सजीव वस्तुएं परिवर्तन का अनुभव और उसके लिए अभिक्रिया करती हैं, इस पर विचार करना कि सजीव वस्तुएं जनन करती हैं। जीवन। जीवन उन रासायनिक अभिक्रियाओं के जरिए इसे परिलक्षित करने वाले अणुओं का विलक्षण, जटिल कोशिकीय संगठन है, जिनके फलस्वरूप जन्म, विकास, अभिक्रियात्मकता, अनुकूलन और जनन होता है। सजीव के लक्षण। वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि, जनन, पर्यावरण का अनुभव और उसके अनुकूल अभिक्रिया करने की क्षमता हो, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। पेड़ पौधे और पशु दोनों सजीव हैं, इसलिए जीव विज्ञान में पेड़ पौधों यानी वनस्पति विज्ञान और पशुओं यानी जंतु विज्ञान दोनों का अध्ययन किया जाता है। सभी सजीव वस्तुओं में निम्नलिखित मौलिक लक्षण होते हैं: परिवर्तन का बोध और अभिक्रिया की क्षमता, जन्म लेना और विकास करना, अपशिष्ट का त्याग करना, जनन करना। सजीवों में कोशिकाएं। प्रत्येक सजीव प्राणी में एक खास विशेषता होती है। इसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी सजीव प्राणी का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं को जीवन का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक एकक माना जाता है। कोशिकाएं जीव द्रव्य अथवा सजीव पदार्थ से बनी होती हैं। शरीर की सभी क्रियाएं और जीवन के गुणधर्मों का कारक जीव द्रव्य होता है। कुछ सजीव प्राणी केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। इन्हें एक कोशिकीय कहा जाता है। वे जीव जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं बहुकोशिकीय कहलाते हैं। सजीव प्राणियों का जन्म और विकास। सभी सजीव बढ़ते तथा विकास करते हैं। सजीव में बढ़त नए जीव द्रव्य के आकार, भार एवं संश्लेषण में वृद्धि के कारण होती है। पशुओं का विकास एक निश्चित आयु तक होता है, जबकि पेड़ पौधे जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। सजीव प्राणियों द्वारा ऊर्जा का उपयोग। न केवल शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, बल्कि उत्क्रम माप यानी किसी प्रणाली में विकार या रोग की सीमा को नियंत्रित रखने अथवा गड़बड़ी को दूर करने के लिए भी सजीव प्राणी को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। भोजन ऊर्जा का स्रोत होता है। शरीर की हर कोशिका को इसकी जरूरत होती है। पेड़ पौधे,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पेड़ पौधों को धूप, पानी और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की जरूरत होती है। सजीव प्राणियों द्वारा श्वसन। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सजीव प्राणियों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वे श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, जिसे रक्त शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। श्वसन के लिए मानव शरीर में फेफड़े यानी फुफ्फुस, मछलियों में गलफड़ और तिलचट्टों में श्वास रंध्र होते हैं। आओ खेलें। कॉलम क का कॉलम ख से उचित मिलान करें। सजीव प्राणियों में परिवर्तन के अनुभव और अभिक्रिया की क्षमता। चेतना आसपास के वातावरण को समझना और उद्दीपन से अभिक्रिया करना कहलाती है। किसी प्राणी अथवा अवयव की उद्दीपन से अभिक्रिया करने की क्षमता सुग्राहिता यानी संवेदनशीलता कहलाती है। सजीव प्राणी में जनन। बच्चे बढ़ते और प्रौढ़ होते हैं। उनमें अपने ही जैसे शिशुओं को जन्म देने की क्षमता का विकास होता है। जीवन की उत्पत्ति पूर्ववर्ती जीवन से होती है। हमने क्या चर्चा की? संसार में दो प्रकार की संरचनाएं हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव प्राणी जटिल तत्व हैं। सभी सजीव प्राणियों की कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक सजीव प्राणी की संरचना और क्रियाकलाप में आयु के साथ परिवर्तन होता है, जिसे विकास कहते हैं। जनन क्षमता के आधार पर किसी सजीव प्राणी का किसी निर्जीव पदार्थ से सामान्य रूप से अंतर किया जा सकता है।